Hi, good morning. Good morning, ma'am. Very good morning, everyone. Good morning, Dee. Good morning. So today we'll skip the affirmations. I think let's try and do more of the second book, Power of the Subconscious Mind, क्योंकि वो थोड़ी कम हो रही है. So today's chapter is nice, interesting, very very brief. बहुत short है magic book में, but बहुत important है, which is Magic Footsteps. So I'll just bring that on the screen, and Raman can read it for us. So this is day 19, Magic Footsteps, and we'll just go through the image इसमें. So एक रास्ता बना हुआ है और उस पे बहुत सारे कदम है, मतलब पैरों के निशान है जो हमको नजर आ रहे हैं यहाँ पर. और ये पैरों के निशान बहुत सारे, मतलब थैंक यू, जब भी वो स्पार्कल्स होते हैं किसी भी चीज में, इसका मतलब है ग्रैटिट्यूड. तो वो ग्रैटिट्यूड का वो रास्ता जा रहा है स्ट्रेट आगे. That's what it means basically. So we'll see where it leads us, and scientifically मूवमेंट के साथ में ग्रैटिट्यूड को कंबाइन करने की पावर क्या होती है, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे. तो यस, ओवर टू यू रमन. Thank you, ma'am. Day 19, Magic Footsteps. A 100 times every day I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measures as I have received and am still receiving. It's a quote by Albert Einstein. He is a Nobel Prize winning physicist. With those words, Einstein gave us a gift equal to his scientific discoveries. He gave us one of the magical secrets to his success: gratitude every day. Einstein is the inspiration behind today's magical practice, and you are going to follow in his footsteps to bring success into your life. Today, like Einstein, you will say thank you 100 times, and you are going to do it by taking 100 magic footsteps. While it might seem unbelievable to you that taking footsteps can make a difference to your life, you will discover that it is one of the most powerful things you can do. Yeah, 1 second, Raman. We'll just take a little break here because ये बहुत important quote है. So Albert Einstein was a physicist. हम सबको पता है, of course, इनको Nobel Prize मिला था. इन्होंने बहुत सारा, इनका पूरा जो स्फीयर था, जो इनका वर्क स्फीयर था, that was related to energy, frequency and vibration, जो हम ग्रेटिट्यूड में पढ़ते हैं. कहते हैं ना, a human body and a human life is nothing but energy, frequency and vibration. So it is all. अगर feeling भी हमारी gratitude की लाने को बार बार, the book says no, that say and feel thank you, say and feel thank you. Same thing Dr. Joseph Murphy भी बोलते हैं दूसरी book में, that feel, like get into that feeling space. So why? Because उससे हमारी energy change हो रही है. Energy की वजह से हमारी frequency change होती है, एंड फ्रीक्वेंसी की वजह से लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो हमको उस हिसाब से हमारे आउटर सर्कमस्टेंसेस मिलते हैं. सो एल्बर्ट आइंस्टीन फिजिसिस्ट, ओके, डेफिनेटली, मतलब वो बहुत कुछ स्टडी करते थे, सेलेस्टियल प्लैनेट्स, इन सब के बारे में, उनकी एनर्जी के बारे में इन्होंने पढ़ा. देन ही वाज वन पर्सन हु एक्चुअली मेंशन दैट ह्यूमन बॉडी की अपनी तरंगे होती हैं, जो ह्यूमन बॉडी एमिनेट करती है, हमारी बॉडी से निकलते हैं. ठीक है, उसमें से करीब like literally, like there was a research जो येल यूनिवर्सिटी ने किया था, उसमें ये था that अगर जैसे एनर्जी मेजर की थी सारे रेप्टाइल्स और एनिमल किंगडम की, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स पे नहीं किया था ये, बट हमेशा रिसर्चेस जब हम करते हैं, जैसे जब मैंने भी कोई जितनी रिसर्चेस की थी वो रैट्स पे की थी, लाइक माइस पे. हम लोग माइस को, जैसे अगर हम डायबिटीज स्टडी करते हैं तो वो वाली रिसर्चेस भी माइस पे करते हैं, फिर अपने कंक्लूजन्स देते हैं. ह्यूमन बीइंग्स को हम जनरली बहुत ज्यादा नहीं, मतलब वी डोंट डायरेक्टली कंसिडर देम एज आवर सब्जेक्ट्स. सो ये येल यूनिवर्सिटी वाली स्टडी में भी यही बताया था कि जितने भी रेप्टाइल्स, मतलब सबके एग्स की एनर्जी ली थी, एग्स की एनर्जी ली थी, और उसमें ये था दैट वेदर इट वाज चिकन एग, रेप्टाइल एग, व्हाटएवर एग, किसी भी बर्ड के, किसी भी एनिमल के, ऑस्ट्रिच के एग,
उसमें मैक्सिमम एनर्जी एग में, अब एग में ऑब्वियसली देयर इज अ न्यू लाइफ जो बहुत ही टाइनी है, जिसका हेड साइड है और टेल साइड होता है. So सारी energy, there's a high concentration of energy towards the head side, and there was hardly minimal energy towards the tail side. Okay, so which means that we know that our brain, our mind is the processing unit. So जो energy हमारे दिमाग में है वो हमारी बॉडी में रेडिएट होती है. So जब भी हम स्ट्रेस लेवल में, ठीक है, ये साइंटिफिकली बता रही हूँ एज डॉक्टर दीप्ति. तो साइंटिफिकली जब हम कभी भी एनर्जी को मेजर करते हैं, मतलब जब हम स्ट्रेस में जाते हैं, तो एमिगडाला से हमारे स्ट्रेस वाले हार्मोन्स निकलते हैं. दैट इज जब एंजाइटी, वरी, फियर. एमिगडाला हमारे मिड ब्रेन का एक पार्ट होता है, ठीक है. अब हमारा जो स्ट्रेस, वरी, एंजाइटी, फियर, अनहैप्पीनेस या लोअर फ्रीक्वेंसी की जो वाइब्रेशंस है, उसकी वजह से जो हेड में जो बहुत अच्छी एनर्जी होती है ना, हेड की एनर्जी स्ट्रेस वाली, जैसे ही स्ट्रेस में जाते हो तभी होता है. स्ट्रेस में आप जा रहे हो, मतलब किसी भी तरह का एंगर आ रहा है, आपको किसी चीज की चिंता हो रही है, आप डिप्रेसिव फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, तो ब्रेन में सिर्फ 5% एनर्जी रह जाती है और 95% एनर्जी हमारी बॉडी के सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाती है. हेंस डिजीजेस, because diseases is dis-ease, okay, and that's how it functions. So इसलिए हमको एनर्जी फील्ड और अपने दिमाग में जो एनर्जी या फ्रीक्वेंसी जो हमारी निकल रही है उस पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है. आज का चैप्टर एक्चुअली उसी बारे में, मैजिक फुटस्टेप्स जो होता है, जो और आइंस्टीन ने ये सारी डिस्कवरीज की थी. Like he was the first person to say that everything is about energy, frequency and vibration. अगर आपको जिंदगी में आउटर वर्ल्ड में किसी भी तरह का बदलाव चाहिए होता है, या आपको किसी भी स्फीयर में प्रोग्रेस चाहिए होती है, पैसे की प्रोग्रेस, हेल्थ की प्रोग्रेस, खुशियों की प्रोग्रेस, ये सब प्रोग्रेसिव चीजें ही होती है. बिजनेस बहुत अच्छा करना है, वो वाली प्रोग्रेस. कुछ नया बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, वो वाली दैट काइंड ऑफ अ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस. आपको अपने बारे में कोई एस्पेक्ट चेंज करना है, उसको प्रोग्रेस बोलते हैं. कभी भी आउटर वर्ल्ड में आपको कुछ चेंजेस लाने हैं, उसके लिए हमको इवेंचुअली वी हैव टू कम बैक टू आवरसेल्व्स. अभी तक क्या होता था, हम लोगों को ब्लेम करते थे, है ना, कि माय बॉस इज वेरी बैड, माय ऑफिस एटमॉस्फेयर इज नॉट गुड एट ऑल, बहुत ही टॉक्सिसिटी है, उस पर्सन में बहुत टॉक्सिसिटी है, वो पर्सन बहुत टॉक्सिक है, ये है वो है. ठीक है, कुछ भी बाहर आपसे अलग नहीं होता. सब कुछ जो एनर्जी आपकी बॉडी से, आपकी लाइफ से रेडिएट हो रही है, वो घूम के आपके पास वापस आती है. सो ओन योर प्रॉब्लम्स, ओके, एंड इफ द रीजन इज इनसाइड यू, दैट मीन्स द सोल्यूशन इज ऑल्सो इनसाइड यू, राइट. सो जो भी आपको लाइफ में डिफरेंस लाना है, उसका कहते हैं ना, जो हमने कल पढ़ा था, बी सोल्यूशन ओरिएंटेड. Solution will come from your life only. If you're not getting the kind of money you want, that means reset the button inside your brain. Okay, if you're not getting the kind of success that you would have wanted, reset the button inside you. So reset button अंदर ही है, उसको हमको बस स्विच ऑन करना है ग्रैटिट्यूड करके, बिकॉज ग्रैटिट्यूड की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है. तो अगर आप मैकेनिकली भी, अगर आपको नहीं भी अच्छा लग रहा है, आपकी सिचुएशन ऐसी है, कुछ लड़ाई हुआ, किसी से कुछ हुआ, आपको नहीं अच्छी फीलिंग आ रही है, या आपको लग रहा है कि मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, या मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, जो भी हो रहा है, इमिडिएटली रीसेट योर बटन टू ग्रैटिट्यूड. ऑन करो ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, थैंक यू. कई बार हमको बोलने की जरूरत नहीं होती किस चीज के लिए थैंक यू. थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट. आपकी मर्जी, आप जैसे कर सकते हो. ठीक है, जो मैंने गोवा से वीडियो बनाया था पहला वाला, so it was just a few seconds. I thought I'll just make a few seconds, but they become like a reminder. And these YouTube videos reach out to so many others जो वॉक करते हैं लेकिन चिंता में करते हैं, दिमाग में कुछ चल रहा होता है. बहुत सारे लोग ऐसे सड़क पे अभी भी मुझे मिलते हैं, पार्क में, इन्हें खोए हुए होते हैं. दे आर नॉट इवन स्माइलिंग, दे आर नॉट इवन टॉकिंग, एकदम से फिर मैं हेलो बोलती हूँ तो कहते हैं ओ हाय, लाइक दे आर सो लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड. हमको हमारी फुटस्टेप्स को, वॉक को मैजिक बनाना है ना, मैजिकल बनाना है. सो यही तो आज का चैप्टर है. सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन यही बोलते थे, मतलब रोज 100 ग्रैटिट्यूड करते थे वो.
in spite of being whosoever he was, like of course बहुत बड़े, he was I think one of the best scientists we've ever had in our country, in the world, sorry. ठीक है, so one of the best scientists we've had, and वो पूरी तरह से अपना, वो और न्यूटन, okay, so वो दोनों पूरी तरह से अपनी सक्सेस ग्रैटिट्यूड को एट्रीब्यूट करते हैं, and they would say that, I mean Einstein particularly, like 100 blessings रोज करना consistently without fail. Do we do it? No, we don't. We might not do 100 in some days, but he did do that. So वही inspiration है 100 number के आज, ठीक है, 100 times every day I remind myself that मेरी अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया लोगों की वजह से, मतलब मेरी अंदर की भी दुनिया, मेरी खुशियां, मेरा कंफर्ट, मेरी बॉडी की हेल्थ, ये भी दूसरों की वजह से है ना। अंदर की हेल्थ तो हमारी दूसरों की वजह से ही है। फार्मर्स हैं, दिन रात खेती कर रहे हैं, खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद इतने सारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, रीना रोज डालती है और मुझे इतना अच्छा लगता है, एंड बिकॉज ऑफ रीना आई डोंट फॉरगेट टू गिव ग्रैटिट्यूड टू ऑल 4 of them, growers, transporters, sellers and people who are cooking, ठीक है, उनको थैंक यू करके मैं खाना कंज्यूम करती हूँ। सो इट इज लाइक यू नो, लाइक हमारी अंदर की दुनिया तो उन्हीं की वजह से है ना। अगर हम किनुआ खाते हैं, कॉर्न ग्रो कर रहे हैं, हमको पता है वो कहाँ पे ग्रो हुआ था, किसने उसकी कटाई की थी, किसने उसको पैक किया था, किसने उसको होलसेल मार्केट में लेके आए, कौन सी कंपनी ने पैकेजिंग करी, कुछ नहीं पता है। बस आराम से हमारे घर में किनुआ बन जाता है और हम बड़ा अच्छा फील करते हैं। और हम किनुआ सबको देते हैं, जिनको भी शुगर होती है या ब्लड शुगर हाई होती है, तो एकदम से किनुआ लेने की वजह से उनकी शुगर कम हो जाती है, यू नो, अगर लगातार खाते रहते हैं तो रोज एक बार भी। सो इतना ज्यादा, मतलब तो हमारी अंदर की दुनिया तो हमारा, हम पानी जो पीते हैं, हमारी अंदर की दुनिया तो पानी है ना। मतलब हमारा ब्रेन भी तो 85% वाटर होता है, वो चलता ही पानी के मीडियम से है, पानी का माध्यम होता है ब्रेन को काम करना। तो सोचो ब्रेन में कितनी एनर्जी होगी, बिकॉज ये हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 8 में कि दैट वाटर हैज 100% मेमोरी, राइट। तो सोचो ब्रेन आपका 85% वाटर है, और वो कहाँ से पानी आ रहा है, पानी लगातार हम पी रहे होते हैं, ठीक है, कम से कम 3 से 4 लीटर जो हम बोलते हैं कि हमको एक दिन में पानी पीना चाहिए एक अच्छी सेहत के लिए, वो इसीलिए होता है ना, ताकि ब्रेन, हमारे मसल्स, हमारा ब्लड, ये सब पानी वाली चीजें हैं, है ना, मतलब पानी बहुत ज्यादा होता है इनमें, तो ताकि बहुत अच्छे से पानी है और रिप्लेस होता रहे फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड लॉसेस होते हैं, नया पानी पीते हैं हम, फिर फ्लूइड लॉसेस होते हैं, फिर नया पानी पीते हैं। तो इस तरह हमारी सेहत, एंड वाटर हैज 100% मेमोरी, एंड इमेजिन 85% ऑफ द ब्रेन इज वाटर, सो दैट मीन्स जो आप सोच रहे हो वो आपके ब्रेन के पानी में एब्जॉर्ब हो रहा है, and that's making up your body, because highest energy का explosive source होता है ब्रेन, माइंड जो होता है हमारा, है ना। सो इसलिए अपने आप को फ्रीक्वेंसी इमीडिएटली चेंज करना, जैसे आप लो से जा रहे हो आपको हाई में करना पड़ेगा, अगर आपको अपने आउटर वर्ल्ड में डिफरेंस देखना है तो। that's what it is. So 100 times every day, you know, like he says that, you know, like my inner and outer life, like I say to, I remind myself, तो अपने आप को उनको भी याद दिलाना पड़ता है कि देखो मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, मेरी जिंदगी बहुत लोगों की वजह से है, जो मेरे इर्द गिर्द हैं, जो आजू बाजू रहते हैं, ठीक है। सांसें भी जो मेरी अंदर की है, वो भी इसलिए कि बाहर हवा है, बाहर ही ऑक्सीजन नहीं होता तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाता। तो हर चीज, अंदर की दुनिया, बाहर की दुनिया, हर चीज, कंफर्ट, लग्जरी, यू नो, ये सारी चीजें हैं इसीलिए ना, मतलब लोगों की बनाई हुई है, दूसरों पे डिपेंड करती है, चाहे वो जिंदा हो या वो गुजर चुके हो, बाय लिविंग एंड डेड। एंड दैट अब मुझे उसी स्पीड से एक्सर्ट करना है कि जिस तरह से मुझे चीजें मिल रही हैं, मुझे उसी स्पीड से थैंक यू बोलना है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था। तो इतने इनके महान विचार हैं, तभी तो ये वो हैं जो है ना। सो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि आइंस्टीन ने हमको गिफ्ट दिया इक्वल टू हिज साइंटिफिक डिस्कवरीज, ही गेव अस वन ऑफ द मैजिकल सीक्रेट्स टू हिज सक्सेस। उनसे कोई भी पूछता था, आप कभी उनके इंटरव्यू देखना, कोई भी पूछता था, वो हमेशा एनर्जी और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी के बारे में बात करते थे। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ साइंटिस्ट, मतलब वो स्पिरिचुअल रेल्म उनके अंदर कितना ज्यादा एक्टिवेटेड था, कैन यू बिलीव इट। नॉर्मली ऐसे होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं, जो लैब्स में अपनी जिंदगी स्पेंड करते हैं, ठीक है, उन लोगों को नहीं इतना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है, यू नो, उनको बहुत ही साइंटिफिक दिमाग होता है, रीजन, लॉजिक। बट ये जितने भी महान लोग थे, ठीक है, ये सारे यू नो, लाइक जो एप्पल के भी फाउंडर थे, स्टीव जॉब्स, सो वो पहले इंडिया आए थे, उन्होंने पहले अपने आप को स्पिरिचुअली एक्टिवेट किया, 6 महीने वो हिमालयस पे रहे, उसके बाद
6 महीना जब हो गया, जब उनको पता लग गया कि कैसे आप क्रिएटर मोड में जा सकते हो और कैसे अपनी जिंदगी को आप बदल सकते हो अकॉर्डिंग टू द वे यू वांट, एंड देन उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की। ठीक है, तो पहले तो वो आप कभी भी उनकी वो बायोग्राफी पढ़ना, तो वो 6 जब भी वो मतलब इतने मतलब when he started his business, first he actually came to India and he stayed in Himalayas and he had a mentor, I'm forgetting his name. So उनके साथ उन्होंने मेडिटेट किया, बहुत बेसिक, बहुत ही मिनिमलिस्ट तरीके से वो रहे, मतलब कोई सुख सुविधा तो होती नहीं है, हिमालयस पे कॉटेज में रहते थे, ठंडी जगह थी, और खूब उन्होंने मेडिटेट किया, अच्छा खाना खाया, सब किया, उसके बाद जाके उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है। सो व्हेन यू आर स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड, जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, एंड दिस इज व्हाट एल्बर्ट आइंस्टीन इज आल्सो ट्राइंग टू टेल अस, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सच अ बिग साइंटिस्ट, आई मीन ही हैड टू बी देयर इन द लैब्स, अलग अलग काम करना, डिस्कवरीज करना, मून की, प्लैनेट्स की एनर्जी, ये सब भी उन्होंने अपने डिस्कवरीज में किया था। बट इवेंचुअली उनसे जब पूछा गया कि आपकी इतनी बड़ी महान सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने कहा ग्रैटिट्यूड। ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम हिम। सो आज की प्रैक्टिस एल्बर्ट आइंस्टीन से प्रेरित है, ऐसा रोंडा बर्न ने लिखा हुआ है, और हम भी उस लेवल की सक्सेस को मापने के लिए उनके फुटस्टेप्स में चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आज की प्रैक्टिस में हम थैंक यू 100 टाइम्स बोलेंगे। ठीक है, बाय टेकिंग मैजिकल फुटस्टेप्स। सो दैट इज व्हाट, सो इसमें लिखा हुआ है, आपको लगेगा कि ये क्या इतनी छोटी सी चीज है, 100 फुटस्टेप्स तो आप 1.5 मिनट में पूरे कर लेते हो, 90 सेकेंड्स लगते हैं अप्रोक्सीमेटली, अगर आप आराम आराम से चल रहे हो तो, मतलब टहलना वाला चल रहे हो तो इट टेक्स 90 सेकेंड्स 100 फुटस्टेप्स करने के लिए। ठीक है, तो लोगों को ऐसा लग सकता है ना कि अरे क्या है, मतलब 1.5 मिनट में क्या ही हो गया, क्या ही हो जाएगा फुटस्टेप्स करने से, बट इसमें वेरी क्लियरली इट इज रिटन दैट इट माइट लुक वेरी स्मॉल थिंग, इट माइट सीम अनबिलीवेबल टू यू दैट ऐसे ये फुटस्टेप्स लेने की वजह से आपकी लाइफ में डिफरेंस हो सकता है ना, मतलब है कितना 90 सेकेंड्स ही तो है, बट आप डिस्कवर करोगे दैट ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग्स होता है। हमें नहीं समझ आता, हमारी नॉलेज या हमारा दिमाग इतना अनलिमिटेड नहीं है कि हमको मतलब इतना है, लेकिन हमें अभी नहीं समझ आती है ये सारी चीजें, बट स्पिरिचुअल रेल्म में, एनर्जी लेवल पे, क्वांटम फील्ड में, ये 90 मिनट्स भी जो हम थैंक यू बोलेंगे ना चल के, मूवमेंट के साथ में, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे एटॉमिक लेवल पे। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी रमन। Yeah. God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one to say thank you? It's a quote by William A. Ward. He is a writer. To take magic footsteps, you take one step and in your mind say the magic words, thank you, as your foot touches the ground, and then again say thank you as your other foot touches the ground. One foot, thank you, next foot, thank you, and continue saying the magic words with every footstep. The best thing about magic footsteps is that you can take any number of magic footsteps anywhere and at any time. Through your house, from one room to another, walking to get your lunch or coffee, taking the trash out, walking to a business meeting, on your way to catch a cab, train, or bus. You can take magic footsteps on your way to anything that is important to you, like exams, a date, a job, interview, an audition, to meet a client, to the bank, ATM, dentist, doctor, hairdresser, to see your team play in a sports game, down corridors, through airport terminals, in parks, or from one block to another. I take magic footsteps around my home, from my bed to my bathroom, kitchen to my bedroom, and outside to my car and the mailbox. Whenever I walk down a street or walk anywhere, I choose a point as my destination and I put gratitude in my footsteps all the way. If you take notice of how you you are feeling before you begin,
then you will notice a big difference in how you feel after you have taken magic footsteps. It doesn't matter if you can't get much of a feeling of gratitude while you are taking them. I promise you will still feel happier afterward. If you are feeling down, magic footsteps will make you feel better. And even if you are feeling great, magic footsteps will lift your spirits even higher. To take the most effective magic footsteps, take magic footsteps for about 90 seconds. This is how long it will take the average person to take 100 steps at a leisurely pace. This practice is not about taking 100 steps exactly, but taking at least that number of steps because it will probably take that number of footsteps to make a difference to the way you feel. Once you are clear on the approximate distance, you can take your 100, 100 steps of gratitude anytime during the day. Don't count the footsteps when you are doing the practice because you will be counting instead of saying thank you, the magic words with each step. When you have completed today's magical practice, you will have said the magic words, thank you, 100 times. How many days of your life have you said thank you 100 times? And Einstein did it every day. Magic practice number 19. Magic footsteps. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Take 100 magic footsteps for about 90 seconds in gratitude anytime during the day. Number 3, with each footstep, say and feel the magic words. Thank you. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yeah, Thank you, ma'am. thank you, Raman. Thank you so much. This is by far one of the shortest chapters we have in this book. So इसमें ये clear है that आइंस्टीन के हिसाब से like 100 magical footsteps लेने के लिए हमको 90 seconds लगते हैं, मतलब 1.5 मिनट. पर ये भी हमको बताया हुआ है that we are not supposed to count the time. ठीक है? You can of course minimum 90 seconds है. So of course अगर आप 5 मिनट, I do it for 7 minutes every day. So 7 minutes is what it takes approximately to completely change the vibration at the cellular level. According to Abraham Hicks books, okay. 5 minutes रोंडा बर्न ने पावर बुक में बोला है कि 5 मिनट अगर आप लगातार एक हैप्पीनेस की जोन में रह सकते हो या ग्रैटिट्यूड की जोन में रह सकते हो तो आपकी बॉडी पे उसका मिराक्युलस डिफरेंस आता है. यू नो, इवन डिजीजेस हील करने में वो हेल्प करता है. So, but I try and do for like 7 minutes. And क्योंकि इब्राहिम हिक्स को मैं बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ, I think it's been more than 10 years now. So I can say that Abraham Hicks is not a person, they are spirits. आत्मा है वो, you know, collective consciousness बोला जाता है, जो एस्टर हिक्स की बॉडी में आते हैं. ठीक है? एंड एस्टर हिक्स किताबें लिखती हैं, लेकिन इब्राहिम वो नाम उन्होंने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को दिया हुआ है. कभी आप एस्टर हिक्स के वीडियोस भी देखोगे तो शी लाइक ब्रीथ्स एंड शी चैनलाइजेस द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस or the spirits of all the noble people who have passed away, you know, उनकी consciousness एस्टर के बॉडी में आती है और फिर वो स्पीच देती हैं. तो इनफैक्ट उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी आवाज में, सब में हल्का सा डिफरेंस आ जाता है जब वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, और उसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इट्स अ ग्रुप ऑफ स्पिरिट्स. तो उसी में उनके हस्बैंड भी हैं, यू नो, एस्टर के हस्बैंड जेरी हिक्स, ऑफ कोर्स, जिन्होंने 3-4 साल पहले ही हैड पास्ड अवे. सो मैंने तो जब शुरू की थी माय जर्नी विद इब्राहिम हिक्स एंड ऑल्सो इट वाज टुगेदर, लाइक जेरी हिक्स भी इक्वली बहुत उस वक्त सेमिनार्स लेते थे.
और एस्टर हिक्स, बट फिर जेरी पास्ड अवे. नाउ ही इज आल्सो पार्ट ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिनको एस्टर हिक्स चैनलाइज कर रही हैं. तो ये जितनी भी किताबें हैं, आस्क एंड इट इज गिवन, जिसको मैं रेफर करती हूँ, सो वेरी सून आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट आल्सो, यू नो, आस्क एंड इट इज गिवन के इंपॉर्टेंट कोट्स लेके. एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो कुछ 5-7 किताबें लिखी है. पहले तो जेरी और एस्टर हिक्स लिखते थे, लेकिन अभी सिर्फ एस्टर लिखती है, लेकिन अब्राहम हिक्स के नाम से बुक होंगी, क्योंकि बुक्स भी वो चैनलाइज करती है. ठीक है, so that's how it is. It sounds very weird, but that is how it is. Like in fact, उन लोगों ने सीक्रेट मूवी के लिए भी अपने बहुत एक्सर्प्ट्स दिए थे, जो अनएडिटेड अनफिल्टर्ड वर्जन है ये सीक्रेट मूवी का. उसमें अब्राहम हिक्स ने काफी सारे इनपुट्स दिए हुए हैं, तो अभी भी है एक यूट्यूब पे. सो उनका जो शुरू का अनएडिटेड वर्जन था, सो आई हैव वॉच्ड दैट आल्सो, व्हिच वाज लाइक रियली गुड. So, लेकिन रोंडा बर्न ने हटा दिया था उनको because of whatever, like people couldn't relate to that kind of collective consciousness being channelized in a human body. तो इसलिए हटा दिया था उनको. ठीक है, सो जो आज का जो चैप्टर है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप 7 मिनट्स कर सकते हो, देखो जब भी आप वॉक के लिए निकलो मॉर्निंग में और इन द इवनिंग और फ्रॉम योर ऑफिस इफ यू गोइंग एनीवेयर, अगर आप अपना मेट्रो ट्रेन तक या फिर ट्रेन या बस तक भी आप वॉक कर रहे हो, कहीं पे भी अगर आप कर सकते हो 5 मिनट्स to 7 मिनट्स, ट्राई एंड डू दैट. You know, so you will see that it will make a difference. रोंडा बर्न ने बहुत क्लियरली लिखा है कि कभी कभी आपको बहुत मैकेनिकली करना पड़ेगा. जैसे अगर आपके किसी से झगड़ा हुआ है या फिर आपको किसी ने कुछ बोला, आपको बहुत बुरा लग रहा है, so just take your magic footsteps. Okay, try and say thank you. कोई रीजन बताने की कुछ जरूरत नहीं है. Just keep uttering, chanting that word, thank you, thank you, thank you, thank you. अकॉर्डिंग टू द बुक मिनिमम 90 सेकेंड्स के लिए करना है, बट बिना टाइम या घड़ी देखे. ठीक है, ऐसे नहीं तो फिर आपका थैंक यू विल बिकम लाइक वो घड़ी वाला नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो थैंक यू आप बोलते रहो. और अगर आपको 7 मिनट्स करना है तो आप अपने वॉच पे टाइमर लगा सकते हो, लेकिन नहीं भी टाइमर लगाना, आप बहुत ऑर्गेनिकली करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और कभी कभी आपकी फ्रीक्वेंसी इमीडिएटली बॉडी में, तो देखो जैसे ही आपने वर्ड थैंक यू बोला, आपकी सेलुलर लेवल पे तो डिफरेंस आना शुरू हो गया. ठीक है, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स नीचे होने लग जाएंगे, हैप्पी हार्मोन्स बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि मूवमेंट के साथ जब ग्रैटिट्यूड की एनर्जी कंबाइन होती है तो उसके मिराक्युलस रिजल्ट्स होते हैं, है ना. तभी तो टोनी रॉबिन्स हमको हमेशा जंप कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, और हर 15 मिनट पे एक्सरसाइज कराते हैं. ठीक है, सो क्योंकि ही वांट्स दैट सर्कुलेशन बढ़ा रहे, और साथ में जब ये एब्जॉर्ब करते हैं हम, जैसे ग्रैटिट्यूड की एनर्जी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, उसको जब हम मूवमेंट के साथ कंबाइन कर देते हैं, दैट मीन्स यू आर टेकिंग फुटस्टेप्स, आप चल रहे हो, है ना, चल रहे हो, इसका मतलब है ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी का सर्कुलेशन बढ़ता जा रहा है. और बहुत आराम से जब आप चलते हैं तो ग्रैटिट्यूड की वो वाली जो एनर्जी है, जब आप चलते हो, मूवमेंट कर रहे हो किसी भी तरह का, तो हार्ट इतनी तेज पंप करता है कि वो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी हमारे ब्रेन तक बहुत आराम से जाती है ना, क्योंकि हार्ट के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है ब्लड को ब्रेन तक पहुंचाना नॉर्मली, इजंट इट, लाइक ऊपर की तरफ जाना. सो मूवमेंट के साथ जब आप एनर्जी कंबाइन करते हो, तो इमोशन को यही बोलते हैं ना, एनर्जी इनटू मोशन. तो और अगर आपको इमोशन और इमोशंस फ्रीक्वेंसीज एमिनेट करते हैं, तो उसको चेंज करने के लिए हम मूवमेंट के साथ में ग्रैटिट्यूड की पावर को कंबाइन करके एक बना रहे हैं. इसलिए मैजिक फुटस्टेप्स, कि फुटस्टेप्स मतलब चल रहे हो और थैंक यू भी बोल रहे हो, उसकी वजह से बहुत गहरा असर पड़ता है पॉजिटिव वे में हमारे सेल्स में और हमारे ब्रेन के सेल्स में. और जिस तरह से हमारे न्यूरॉन्स जब हम मूवमेंट करते हैं तो उनकी फायरिंग 10 गुना ज्यादा हो जाती है. तो इमेजिन अब फायर क्या हो रहा है, ग्रैटिट्यूड, है ना. सो इस तरह ये वाली प्रैक्टिस बहुत, तो उस वक्त हो सकता है आपको नहीं पता लगे, सपोज आप एंग्री हो, सैड हो, तो उस वक्त आपने कर लिया, ठीक है, 5 मिनट के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप बोलते जा रहे हो, कर लिया आपने. हो सकता है उस वक्त आपको एकदम से बहुत मेजर कुछ डिफरेंस नहीं नजर आएगा, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स इसका असर जरूर से इन अ वेरी बिग वे आपके सेल्स में और उस पर्टिकुलर जो भी सिचुएशन है, कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो भी हुआ है, किसी ने कुछ बोला, उस पे पड़ेगा, या आपका कोई काम अटक रहा है, तब भी ग्रैटिट्यूड वॉक कर लो. तो आज की प्रैक्टिस से अब हम ये सीखेंगे कि किस तरह हमको अपने इमोशंस एलिवेट कर सकते हैं. इसीलिए कहते हैं ना, डांसिंग इज अ वेरी गुड वे ऑफ चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, बिकॉज दैट्स ऑल्सो कंबाइनिंग मूवमेंट. जब भी मूवमेंट और हैप्पीनेस कंबाइन होती है,
तो उसका मतलब इवन डिजीजेस स्टार्ट गोइंग अवे, बिकॉज डिजीजेस इज नेगेटिव एनर्जी विच इज ट्रैप्ड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी. ओके, डिजीजेस आर नथिंग बट दैट. सो इट इज वेरी सिंपल. तो इसीलिए एनर्जी चेंज करके इसमें लिखा हुआ है ना, दैट यू विल बिकम यंगर, यू नो, your scars will go away, your moles will go away. People जो gratitude करते हैं, they will live 7 years longer. ये सारी चीजें हमने इसी किताब में पढ़ी हैं. तो ये इसी तरह से असर होता है कि हमारे सेल्स ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसमें अभी तक टॉक्सिक एनर्जी थी, मे बी, है ना, गुस्से की एनर्जी थी, वरी की थी, ग्रीफ की थी, फियर की थी, जेलसी की थी, हेट्रेड की थी, लुकिंग डाउन ऑन योरसेल्फ की थी, है ना. अब ये सारी एनर्जी चेंज हो जाएगी और इसमें बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी आ जाएगी. अपने आप बॉडी की बीमारियां ठीक होने लग जाती हैं. तभी तो जब किसी भी सिचुएशन में हमको चेंज करना होता है, नेगेटिव एनर्जी होती है, तो हम उसमें पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं ना. जैसे कोई हमारी नेगेटिव रिलेशनशिप्स भी होती है, तो हमारे पास वो मैजिकल रिलेशनशिप वाला चैप्टर है कि हम उनकी फोटो देख के उनके बारे में 5 पॉइंट्स लिखते हैं, तो हम ग्रेटिट्यूड की एनर्जी डाल रहे हैं. इसी तरह से लिखना होता है ना, आई एम सो ग्रेटफुल दैट सो एंड सो हैज डन दिस फॉर मी, आई एम सो ग्रेटफुल दैट so and so gave me a birthday present on my birthday and made me feel so special. I'm so grateful that I had very good time with that person. इस तरह से हम gratitude ही डालते हैं ना उस relationship में, और उसके बाद relationship बदल जाती है और हमारे दिमाग में भी उस relationship के प्रति अब उतना ज्यादा angst या anger नहीं होता. तो ये ग्रैटिट्यूड की पावर ही ऐसी होती है. हमें लगता है दैट ये बहुत ज्यादा ऐसा तो कुछ असर हुआ नहीं, बट पेशेंस, ठीक है. सो पेशेंस बहुत जरूरी है. कल हमने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब में एट्रीब्यूट्स जो पढ़े थे एंटी एजिंग के लिए, मतलब यूथफुलनेस के लिए, उसमें सबसे पहले पेशेंस था ना. ये होता नहीं है लोगों में. 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना कोई चीज टर्न अराउंड नहीं हुई तो एकदम से मेरे पास फ्लड ऑफ मैसेजेस आने लग जाते हैं कि हमने ये किया, ये नहीं हुआ, हमने ये नहीं किया. ठीक है. सो ये इसका मतलब ही है, अब पता लग जाता है फिर मुझे किस लिए नहीं हुआ, क्योंकि इतना ज्यादा लैक है. मतलब इतना ज्यादा वो वाली फीलिंग है दैट इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स नॉट हैपनिंग, अभी तक हुआ नहीं, अभी तक हुआ नहीं, अभी तक हुआ नहीं. तो इस फीलिंग में कहां से होगा, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. अगर आपके मन में ये आ रहा है कि ये चीज नहीं हुई है तो वो नहीं होगी. अगर वो 3 दिन के बाद होने वाली थी तो अब वो 3 महीने आपने और उसको पुश कर दिया, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन. ठीक है. सो इसलिए अपनी अपनी जर्नी बहुत इंजॉय करो. डेस्टिनेशन तो आएगा ही, एंड गोल तो आएगा ही, बट जर्नी में जो मजा है ना वो एंड गोल में भी नहीं होता है. So always, whenever you're chasing something, success, partner, love, money, enjoy this journey. Every day is so important because ये दिन फिर वापस नहीं आएगा. वहां तो आप पहुंच ही जाओगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. ठीक है. लेकिन कोई बात नहीं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना रह गया. मैंने भी तो 2.5 साल वेट करी थी ना, उसके बाद मेरी ड्रीम्स एंड गोल्स अचीव हुए थे. सो मेरे लिस्ट में से एक बहुत बड़ा वो कट हो गया है, लाइक जो मैंने लिखा था, देयर वाज अ सर्टेन एक्स अमाउंट ऑफ मनी आई वांटेड टू रिसीव एवरी मंथ, लाइक कंसिस्टेंटली, एंड नाउ इट इज हैपनिंग. तो वो चला गया है अब. मतलब वो वाला जो मेरा ड्रीम लिस्ट में जो गोल था, वो ड्रीम लिस्ट में से उसमें एक्स अमाउंट था ना, अब वो मैंने उसको x+5 कर दिया है. ठीक है. वो चला नहीं गया है, मतलब अब एक्सपेंशन है. मतलब आप एक पायदान तक पहुंचे हो, एक प्लेटफॉर्म तक, अब आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है. ठीक है. तो पहला प्लेटफॉर्म आपने अचीव कर लिया, तो अब अपने को एक्सपैंड करो. जैसे हमेशा ये बोलती हूँ ना, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इज द ओनली मोटिव ऑफ आवर लाइव्स, इजंट इट, फॉर योरसेल्फ. So because of which, of course, I will be expand everyone else also. I will be able to do that, है ना. जैसे जब आपके पास सपोज आप बहुत आराम से 10 लाख रुपए हर महीने रिसीव कर रहे हो, कमा रहे हो, जो भी जहां से भी आ रहे हैं, तो अब आप बहुत लोगों को हेल्प करोगे ना. मतलब आप जिस तरह के आप कपड़े खरीदोगे वो डिफरेंट होंगे. ठीक है. अब आप बहुत ज्यादा प्राइस टैग नहीं देखोगे. तो आपने इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट किया. ठीक है. आप अपने घर में ज्यादा लोग एंगेज करोगे जो डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, हो सकता है उनको, और उनकी सैलरी भी आप बढ़ाओगे, तो आपने किसी और की लाइफ भी बदली. ठीक है. फिर उसके बाद मतलब जो भी आपको हो सकता है कि कहीं पे आप डोनेट कर रहे हो किसी गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को फंड कर रहे हो, तो आपने किसी और की भी जिंदगी बदली, है ना. तो लगातार आप इस तरह से, देन आई यू गेट अ बेटर लैपटॉप, तो आपने वो खरीदा, तो आपने उस कंपनी की ग्रोथ में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया इन योर ओन स्पेशल वे. तो जब आप एलिवेट होते हो, तो ये तो मैंने पैसे का एग्जांपल बताया जो बहुत ही मटीरियलिस्टिक चीज है.
ठीक है। सो ये एग्जाम्पल बताया, तो इस तरह से आपने बहुत लोगों की ग्रोथ को कंट्रीब्यूट किया। अब अपनी हेल्थ में, अब आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो क्या, आप बहुत कुछ कर पाओगे, आप खुशी आपको बहुत मिलेगी, यू विल बी एबल टू डू मच मोर फिजिकल वर्क, आप मे बी लोगों की सेवा कर पाओगे, आप अपने बारे में ज्यादा सोच पाओगे, आपका ये एस्पेक्ट अचीव हो गया तो अब आप अपनी ग्रोथ एक्सपेंशन के बारे में सोचोगे, आप अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कर पाओगे, अपनी फैमिलीज को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पाओगे। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो अपना वाई हमेशा स्ट्रांग रखा करो। अगर रीजंस आपको, मतलब अगर आप गोल्स अचीव करने हैं तो वाई डू यू वांट दैट, सपोज यू वांट अ पार्टनर इन योर लाइफ, वाई, व्हाट, वाई, ठीक है। हाउ तो भूल जाओ, बिकॉज हाउ यूनिवर्स का काम होता है। अगर आपकी कोई ड्रीम्स अचीव नहीं हो रही है सपोज, और बहुत टाइम से कुछ था, वाई डू यू वांट दैट थिंग इन योर लाइफ। So this is how I have worked, that my why has always been very strong, तो मेरी dreams पट पूरी हो जाती है, ठीक है। So why अपना आप strong रखो, that why do I want good health, why do I want, like, why do I want money, why do I want my business to become a huge success, ताकि बहुत पैसा आए, उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होगी, आप अच्छा खाना खा पाओगे, आप लोगों को कंट्रीब्यूट कर पाओगे, आप लोगों की मतलब यू वांट टू मेक अ डिफरेंस टू अदर्स लाइव्स, यू विल बी एबल टू डू दैट। तो अपने वाई के बारे में सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, ठीक है। तो इसीलिए इब्राहिम हिक्स की जो बुक है ना, उसमें एक फोकस व्हील कॉन्सेप्ट है, जो हम में से कुछ लोगों ने किया भी है। हम कभी करेंगे, फोकस व्हील कराएंगे आपको, मतलब बोल बोल के करा देंगे, मे बी सम संडे इवनिंग। सो जो भी हमारा प्राइमरी गोल है उसका हम फोकस व्हील बनाएंगे। आई विल टीच यू हाउ टू डू दैट, एंड यू कैन डू दैट ऑनलाइन ओनली लाइक दिस, ठीक है। someday on a Sunday, maybe by 8:30 in the evening, when all of us would be comparatively freer, okay, then we will do that. And focus wheel में हम सिर्फ why पे फोकस करते हैं, और हम कॉन्सेंट्रेटेड 10 से 15 मिनट लगाएंगे उस पे, अपने वाई पे, उस पर्टिकुलर गोल के लिए। आप देखना वो कितनी जल्दी आपके पास आता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कमिंग बैक टू मैजिक फुटस्टेप्स, सो व्हेन वी डू अ मैजिक फुटस्टेप्स, ये हमारी फ्रीक्वेंसी को हाई करने में हमेशा हेल्प करेगा। ये हमको लो नहीं जाने देगा ना। जैसे ही हम लो गए, आप मैजिक फुटस्टेप शुरू कर दो, आप घर में ही कर लो, यू डोंट हैव टू, इसमें लिखा हुआ है ना, जब आप ट्रैश अपने घर के बाहर रख रहे हो, लाइक अपने डस्टबिन जब घर के बाहर रख रहे हो, उसमें भी आप मैजिक फुट स्टेप कर रहे हो। जब आप अपनी किचन में अपना पानी लेने के लिए जा रहे हो, यू कैन डू मैजिक फुट स्टेप्स। आप बस या मेट्रो तक जा रहे हो, मैजिक फुट स्टेप्स करते करते जाओ। आप ऑफिस में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जा रहे हो, मैजिक फुट स्टेप्स। जब आप अपनी पार्किंग से कहीं बिल्डिंग के अंदर जा रहे हो, मैजिक फुट स्टेप्स। सो ये आप कहीं पे भी कर सकते हो, इवन इफ यू आर गोइंग फ्रॉम योर बेडरूम टू बाथरूम, इवन इफ इट इज जस्ट 5 स्टेप्स दूर होगा बाथरूम बेडरूम से, ठीक है, तो उसमें भी मैजिक फुटस्टेप्स। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस। इसका बहुत पावरफुल इम्पैक्ट होता है। आई एम अगेन रिपीटिंग इट बिकॉज सम ऑफ अस वी ड्वेल इन दैट जोन सो मच, और वी आर ट्रैप्ड इन द पास्ट, और वी ड्वेल इन एंगर और इन नेगेटिव इमोशंस। इमीडिएटली चेंज करो अपनी फ्रीक्वेंसी बाय डूइंग द मैजिक फुटस्टेप्स. Okay, so it says that if Einstein can do it, we can do it too, right? And there's so many people who've changed their lives, so we can do it too. So this is how we have to grow and expand. बस इतना ही चैप्टर है आज का, छोटा सा चैप्टर है, बट पावरफुल बहुत है। और आज हमको बस दिन में एक बार 90 सेकेंड्स के लिए मैजिक फुट स्टेप्स करने हैं, 90 सेकेंड्स मिनिमम, ठीक है। ऑफ कोर्स आप इसको बहुत ज्यादा बार कर सकते हो, और बार बार कर सकते हो, पूरे दिन करो मैजिक फुट स्टेप्स। सो काउंट योर ब्लेसिंग, सुबह की प्रैक्टिस है जिसमें हम 10 ब्लेसिंग्स हम लिखते हैं विद द लैंग्वेज। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, विद ऑल माई हार्ट आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, ग्रेटफुल फॉर दैट, तो ऐसे 10 हमको लिखने हैं, फिर रीड करना है, सो दैट वो डाउनलोड हो जाए हमारे, लाइक पैटर्न बन जाए सबकॉन्शियस माइंड में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है टेक 100 मैजिक फुटस्टेप्स फॉर अबाउट 90 सेकेंड्स इन ग्रैटिट्यूड एनी टाइम ड्यूरिंग द डे। तो ये सुबह की प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन कर लो इसको सुबह 90 सेकेंड्स अपने लिए। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जिसके डिविडेंड्स आपकी जिंदगी में वापस आएंगे, ठीक है। सुबह ही कर लो, सनराइज के टाइम जितना जल्दी अर्ली इन द डे करो उतना अच्छा होता है। शाम को भी कर लेना, कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार है। और अगर 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। आप में से जिन लोगों को अभी काम पे नहीं जाना है, और अगर आप कर पा रहे हो 5 मिनट्स, तो प्लीज 5 मिनट्स कर लेना, ठीक है। विद ईच फुटस्टेप्स से एंड फील द मैजिक वर्ड्स थैंक यू, से एंड फील। ओके, इसका मतलब है अपनी आवाज मन में चाहे बोल रहे हो या जोर से बोल रहे हो, अपनी आवाज सुननी भी है आपको। ओके, एंड देन रात को सोने के पहले
होल्ड द मैजिक रॉक इन वन हैंड, अपनी मुट्ठी में मैजिक रॉक पकड़ो। तो रात में भी ग्रैटिट्यूड में सोना है, पूरे दिन भर में से आप चूज करो, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और क्या हुआ, और क्या हुआ, अच्छा ये हुआ, अच्छा और क्या हुआ, ये हुआ, और उसमें से बेस्ट चीज निकाल के सो जाओ। दिस इज द प्रैक्टिस, स्लीपिंग इन ग्रैटिट्यूड, वेकिंग अप इन ग्रैटिट्यूड। ओके, और पूरे दिन भर में प्रैक्टिसेस है ये। सो दिस इज व्हाट आवर प्रैक्टिस इज अबाउट टुडे। सो वी गो टू द नेक्स्ट बुक, which is How to Stay Young, चैप्टर का नाम, जिसका इंट्रोडक्शन हमने कल पढ़ा था। और उसमें आज हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे किसी पर्सन का। इसमें सारे लाइव एग्जाम्पल्स है कि किस तरह से ये इंसान अपने दिमाग में इसने अपने आप को बूढ़ा कर लिया और वो प्री मैच्योर एज हो गया। ठीक है, उनके ही हैड ग्रोन ओल्ड इन हिज थॉट लाइफ। तो एवरीथिंग इज इन द माइंड। ओके, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ना, एनर्जी फील्ड हमारा ब्रेन में 95% होता है, 5% बॉडी में होता है, लेकिन स्ट्रेस में जब होते हैं तो उल्टा हो जाता है, बिल्कुल उल्टा। 5% in the brain and 95% in the body, which means cells have absorbed the negative energy and diseases. इसलिए हम लोग उसके बारे में सोच रहे हैं. So it's all about the thought. Okay, so yeah, Reena, you reading today? Yes, ma'am. Yeah, please start. He had grown old in his thought life. A few years ago, I called on an old friend in London, England. He was over 80 years of age, very ill, and obviously was yielding to his advancing years. Our conversation revealed his physical weakness, his sense of frustration, and a general deterioration almost approaching lifelessness. His cry was that he was useless and that no one wanted him. With an expression of hopelessness, he betrayed his false philosophy. We are born, grow up, become old, good for nothing, and that's the end. This mental attitude of futility and worthlessness was the chief reason for his sickness. He was looking forward only to senescence, and after that, nothing. Indeed, he had grown old in his thought life, and his subconscious mind brought about all the evidence of his habitual thinking. Yeah, so हमको पता लगाना सेल्फ लव कितना जरूरी होता है, जो हम मेरा वर्क में पढ़ते हैं, and even otherwise that you should really love yourself. So this is what happens जो इस पर्सन के साथ हुआ। मतलब ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी के फ्रेंड थे, ठीक है। सो ये जब बुजुर्ग हो गए थे, 80 इयर्स के थे, तो उनको हर तरह की बीमारी यू नेम इट और इनको हो गई थी। वो इसलिए क्योंकि उनको ये लगता था मुझे कोई नहीं चाहता, मेरी जिंदगी फ्यूटाइल है, ये मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं यूजलेस हूँ, मैं ऐसा हूँ, यू नो, लाइक ऑल ऑफ दैट उनका ये वाला सेंस था दैट वी आर बॉर्न, देन वी ग्रो अप, उसके बाद हम बुजुर्ग हो जाते हैं, फिर हम गुड फॉर नथिंग हो जाते हैं और जिंदगी खत्म हो जाती है। ठीक है, विच इज जस्ट ऑपोजिट टू जिस तरह से हम जीते हैं। हम there is no age, मतलब everybody is ageless because it's all in the head, right? So this is what it is. तो इसमें इस कारण से ये वाली थॉट प्रोसेस थी उन पर्सन की, तो उन्होंने इस कारण से इतनी सारी बीमारियां एब्जॉर्ब कर ली, मतलब अपने, बिकॉज बहुत लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है मेरे पास कोई है ही नहीं, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे, अरे तो अपने आप हो, ये बहुत बड़ी चीज होती है, that you are loving yourself, you know। तो इस तरह से अगर मेंटल एटीट्यूड की बात होती है, अगर इस तरह से हम करेंगे तो दैट मीन्स हम अपने दिमाग में पहले से ही बुजुर्ग हो गए, और ऑब्वियसली हमारी जिंदगी वैसी होती जाएगी जैसे हम सोचते जाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इज व्हाट डिसाइड्स आवर डेस्टिनी। जो हमारे कांस्टेंट थॉट प्रोसेस होते हैं, बार बार हम ये चीज पढ़ते हैं, है ना, लेकिन फिर भी हमको याद नहीं आता है क्रूशियल मोमेंट पे। सो बार बार ये कि जो हमारे रिपीटेड थॉट्स हैं, दैट आई एम अलोन, दिस इज नॉट हैपनिंग, दिस इज नॉट हैपनिंग, दैट थिंग हमसे और दूर जाती जाती है। तो इनका ये वाला था, रिपीटेड थॉट्स इनके यही थे, मतलब रेपिटेशन कहते हैं, द रेपिटेशन से बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज रेपिटेशन सबकॉन्शियस माइंड में, क्यों हम लिखते हैं 108 टाइम्स, 100 टाइम्स, क्यों हम थैंक यू बार बार बोलते हैं, क्यों हम 50 टाइम्स, 60 टाइम्स, sometimes I write 333 times also. Many times I've written 333 times. Why am I writing 333 times? Because it is repetition. Okay, and constantly 333 times I'm in gratitude, जिसको लिखने में करीब 1.5-2 घंटा लगता है मुझको, ठीक है। तो 333 टाइम्स आप लगातार 1.5-2, यहाँ पे तो 90 सेकेंड्स की बात की थी आज मैजिक फुटस्टेप्स चैप्टर में,
333 टाइम्स हम थैंक यू बोल रहे हैं, तो 2.25 घंटा हम ग्रैटिट्यूड के जोन में होते हैं। तो सोचो एनर्जी फील्ड कितनी हाई हो जाएगी उसकी वजह से, है ना। एंड व्हाटएवर जो आपकी एनर्जी फील्ड है, आप वैसी चीजें अट्रैक्ट करोगे। ऐसी तो ड्रीम्स आंसर होती है हमारा, है ना। तो इसीलिए अपने डोमिनेंट थॉट्स आपके क्या है उनको बदलो इमिडिएटली, ठीक है। डोमिनेंट थॉट्स ये है, मेरा वजन नहीं कम हो रहा, मैं मोटी हो रही हूँ, मेरे हिप्स ब्रॉड लग रहे हैं, मुझे ये वाली ड्रेस फिट नहीं होती, अब तो मुझे लार्ज आता है। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है, मैं उनके मुंह से ही सुनती हूँ। एक बार बोल दिया मुझे समझ आ जाता है एक बार पे, ठीक है। बार बार बोलते हैं, इसका मतलब है उनके डोमिनेंट थॉट वो है ना। और अगर डोमिनेंट थॉट वो है तो ऑब्वियसली वो चीज पैटर्न बन गई है सबकॉन्शियस माइंड में। अब वो चीज आप और ज्यादा देखोगे, अब देखना वजन कितना बढ़ेगा, और चाह के भी कम नहीं होगा। बिकॉज किसने क्रिएट किया था ये, हम ही ने किया था ना, बार बार बोल बोल के सोच सोच के। जैसे इस पर्सन ने किया, अपने आप को बुजुर्ग कर लिया समय के पहले, सारी बीमारियां इनको होती गई क्योंकि मेरी जिंदगी बेकार है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, बूढ़े हो जाते हैं, फिर किसी काम के नहीं रह जाते हैं, गुड फॉर नथिंग। इमेजिन दिस इज व्हाट ही वुड टेल टू हिमसेल्फ, दैट आई एम गुड फॉर नथिंग, एंड दिस इज द पैटर्न। सो ये पैटर्न बन गया सबकॉन्शियस माइंड में, तो यूनिवर्स ने कहा तथास्तु, और इनकी जिंदगी में वो हो गया। सो इस तरह से काम होता है, इसीलिए पैटर्न्स चेंज कर दो। आप बोलते रहो आई एम वेरी प्रोडक्टिव, आई एम वेरी यूजफुल, ओके, ऐसी चीजें अपने बारे में। कल हम करेंगे आई एम एफर्मेशंस, ठीक है। आई विल मेक यू डू दैट, सम रियली नाइस एफर्मेशंस। सो हाँ जी रीना। Age is the dawn of wisdom. Unfortunately, many people have the same attitude as this unhappy man. They are afraid of what they term old age, the end and extinction, which really means that they are afraid of life. Yet, life is endless. Age is not the flight of years, but the dawn of wisdom. Wisdom is an awareness of the tremendous spiritual powers in your subconscious mind and the knowledge of how to apply these powers to lead a full and happy life. Get it out of your head once and for all that 65, 75, or 85 years of age is synonymous with the end for you or anybody else. It can be the beginning of a glorious, fruitful, active, and most productive life pattern, better than you have ever experienced. Believe this, expect it, and your subconscious will bring it to pass. या दिस इज सो ब्यूटिफुल। इसमें लिखा हुआ है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आपको ये नहीं सोचना है ना आई एम 50, आई एम 60, आई एम 70, अब मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, अब बचाई क्या है जिंदगी में। दैट इज एक्चुअली द टाइम जब आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हो। बिकॉज देखो टिल अबाउट 30s 40s आप अपने बच्चे पाल रहे होते हो, घर खरीदना है, बिजनेस को फिक्स करना है। बाय द टाइम आप 50s 60s में पहुंचते हो, प्रीटी मच आपकी बेसिक वो वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है बच्चों वाली वो खत्म हो जाती है। प्रीटी मच आपने अपनी गाड़ी घर ये सब सेटल कर लिया है, सो यू आर मोर सेटल्ड इन लाइफ। और जिंदगी के तकाजों के कारण आपको एक अलग तरह की विजडम आती है। यू ऑलवेज सी लाइक women who are in their late 40s 50s 60s इतनी सेटल्ड होती हैं, वो अपने सेटल्ड मतलब they are very very poised graceful, they are so themselves। उनको कोई एक्ट पुट अप नहीं करने की जरूरत पड़ती है that they have to look beautiful or you have to do that, or because that beauty radiates from within, करना ही नहीं पड़ता है। You don't have to wear a lipstick, and sometimes when you don't feel like, when you're just on a holiday, you can just be in your chappal and your shorts and a t-shirt. I mean, you don't have to wear the best of your dresses and all that, because that confidence and that love and that personality, it is like so calm and poised, and in the conduct एक अलग तरह की विजडम होती है, एक पेशेंस होता है, विजडम होती है, पता होता है रिश्ते कैसे निभाने हैं, किसको क्या बोलना है, इस पर्सन से इस तरह बात करनी है, उस पर्सन से दूसरा है। तो मतलब उसी को तो बेसिक विजडम बोलते हैं। ये नहीं होती है हमारी 20s 30s में, ये सारी चीजें नहीं आती हैं, ये उम्र के साथ साथ आती है, ठीक है। सो विच इज ऑफ कोर्स लाइक देयर आर पीपल हु आर इन देयर 30s and 20s आल्सो हु आर वेरी वेरी मैच्योर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब इसीलिए ये सोचना कि अब मेरी उम्र बढ़ रही है तो अब आप में एक अलग तरह की पावर होती है टू लीड अ फुल एंड हैप्पी लाइफ, बिकॉज अब वो स्ट्रगल्स वाली फेज प्रीटी मच चली जाती है।
ठीक है, और एक so it says that one has to think that it is the beginning of glorious, fruitful, active and most productive life pattern. मतलब जैसे आप बड़े हो रहे हो 50, 60, 70s में आ गए हो, अब आप सोचो अब मेरी जिंदगी शुरू हुई है, ठीक है, अब मेरी जिंदगी शुरू हुई है। जब मैंने तो पूरी अपनी जिंदगी पढ़ाई लिखाई, अभी भी पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ, बट मतलब लैब्स में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड होता था मेरा। तो हम लोग शुरू में जब पढ़ाई करते हैं तो कभी मैंने नेल्स ग्रो नहीं किए थे अपने, हमको अलाउड नहीं होता था ना, जब आप लैब्स में होते हो तो यू कांट ग्रो नेल्स एंड ऑल दैट। तो मैंने कभी वो सब चीजें नहीं की थी, लाइक मेकअप करके रहना। अभी भी बहुत कम करती हूँ, मतलब अब कभी कभी, बट लाइक वो सारी चीजें कि नेल्स ग्रो करके नेल पेंट्स लगाना, ये सारी चीजें कभी नहीं की थी। बट द मोमेंट when I had touched my 40, I decided that I'm going to focus on my like myself in terms में सारे वो चीजें करूंगी जो मैंने नहीं की थी। तो मैंने नेल्स ग्रो करना शुरू किया, फिर मैंने नेल पेंट्स लगाए, नेल आर्ट कराने लगी। I've never got all those things done because ये मेरे प्रोफेशन के साथ ही नहीं जाती थी। फिर अब मैं ये सारी चीजें करती हूँ। I really look after myself. I'm very careful about, like what I'm doing, who I'm with. So all those things have come, later in the life. And there is a lot of calmness and poise and wisdom now in everybody who are aging, going towards aging, and this is now अपने आप को self talk में लगातार बोलते रहो that the most glorious and productive years of my life are coming now. Okay, this has to be the dominant self talk. Glorious मतलब magnificent, fruitful मतलब फल देने वाले, है ना, आप लोगों का भला कर रहे हो, मतलब you are so fruitful to everyone and life is fruitful to you. Active इसका मतलब आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है ना, तभी आप एक्टिव रहोगे। So very active and most productive, it's not productive, it is most productive time of my life is now and it's coming and this is how it's going to be. तो ये चारों वर्ड्स ये बहुत पावरफुल है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने 40 टच कर लिया और वो आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, दैट अब आपका टाइम शुरू हुआ है जो ग्लोरियस है, फ्रूटफुल है, एक्टिव है एंड मोस्ट प्रोडक्टिव होगा, ठीक है, बेटर देन यू हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। ये भी लिखा हुआ है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने, बेटर देन यू हैव एवर एक्सपीरियंस। आपने जो एक्सपीरियंसेस अभी तक अपनी जिंदगी में, अब आप देखना कि एवरी टाइम इट विल बी बेटर देन द प्रीवियस वन, every day will be better than previous. So every year, जो माइलस्टोन आपका बर्थडेज के जो साल में अचीव करोगे उसमें आप देखना कि आपके साल अब कितने ज्यादा ग्लोरियस होने वाले हैं। So that is what. So Dr. Murphy says, believe this. ठीक है, believe this, expect it. So be excited about, because when you're expecting something really amazing, so you're excited about it. So believe this, expect it and your subconscious will bring it to pass. और अब आप देखना आपकी जिंदगी कैसे होती है, ठीक है। So it is like that. So you have to hear and sing that song, love you जिंदगी, तभी वो आएगी ना आपके पास, है ना, then the universe will yield more. So then welcome the change. Welcome the change. Old age is not a tragic occurrence. What we call the aging process is really change. It is to be welcomed joyfully and gladly, as each phase of human life is a step forward on the path which has no end. Man has powers which transcend his bodily powers. He has senses which transcend his 5 physical senses. Scientists today are finding positive, indisputable evidence that something conscious in man can leave his present body and travel thousands of miles to see, hear, touch, and speak to people, even though his physical body never leaves the couch on which it reclines. Man's life is spiritual and eternal. He need never grow old for life, or God cannot grow old. The Bible says that God is life. Life is self-renewing, eternal, indestructible, and is the reality of all men. Yeah, so again very important कि ये वेलकम, ये जो चेंजेस हमारे लाइफ में हो रहे हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, उनको बहुत ग्लैडली वेलकम करो। कहते हैं ना, एज ग्रेसफुली। सो
इट इज ऑल अबाउट हाउ यू आर लीडिंग योर लाइफ, किस तरह से आपका क्या एटीट्यूड है ना. सो इट सेज दैट इंसान में इतनी पावर होती है दैट ट्रांसेंड्स हिज बॉडीली पावर्स, इजंट इट. मतलब हम यहाँ पे बैठ के इंडिया में, न्यू दिल्ली में, इस जगह पे बैठ के वी कैन सेंड ब्लेसिंग्स टू समवन हु सिटिंग इन अमेरिका. उसकी हेल्थ ठीक नहीं है अभी, तो हम ठीक कर सकते हैं ना. देयर आर सो मेनी पीपल हु फॉलो रेकी, प्रैक्टिस रेकी, इजंट इट. दे डू मेक अ डिफरेंस टू द अदर पर्सन सिटिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. मैन इज मच मोर देन हिज बॉडी. लाइक हमारी एनर्जी कहीं पे भी, और एनर्जी तो कहते हैं ना, इट डज नॉट टेक टाइम, इट डजंट टेक टाइम. आप एनर्जी अभी रेडिएट करो, वो अभी की अभी, लैग्स भी नहीं होते उसमें, डिफ्यूजन भी नहीं होता. जैसे है ना, सन की रेज भी डिफ्यूज होके यहाँ तक आती है. अगर हम सन के नजदीक होते तो अभी तक जल जाते बिल्कुल, इजंट इट. तो वो भी डिफ्यूज होके आती है. तो डिफ्यूजन एक नॉर्मल फेनोमेना होता है जब कोई भी चीज प्लेस ए से प्लेस बी तक ट्रैवल करती है. तो आपकी एनर्जी तो डिफ्यूज भी नहीं होती है. आप जैसे ही हीलिंग एनर्जी, किसी को हीलिंग हैप्पीनेस, व्हाटएवर, जो भी आप किसी भी तरह की, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, आप उनको प्रोस्पेरिटी की एनर्जी भेज रहे हो, ब्लेसिंग्स भेज रहे हो, वो इंस्टेंट पहुंचेगी और इंस्टेंटली उसका इफेक्ट होता है. जो मैंने आपको टेलीपैथी के बारे में एक दिन बताया था, so I told you ना कि there's something called telepathy. Telepathy is just focus your energy on one particular thing, think about that person and send blessings, love, healing, happiness, okay, and you will see that that person will call you or something will happen. How? क्योंकि आपकी एनर्जी, आपने देखा है ना, कई बार किसी के बारे में आप सोचते हो तो वो पर्सन का पहले ही फोन आ जाता है. मतलब आपने सोचा होगा कि नो, आई हैव टू कॉल दिस पर्सन एंड दिस एंड दैट, या आप किसी के बारे में कुछ ऐसे मन में चल रहा होता है, 2-3 दिन से आपका कुछ चल रहा होता है, आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे होते हो, और फिर एंड देन यू से दैट मैं आप ही के बारे में सोच रही थी, या मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, अच्छा हुआ फोन कर लिया. वो कैसे होता है? ये एनर्जी तो होती है. अब हम इस एनर्जी को चैनलाइज करना सीख रहे हैं. तो इसलिए ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है, मैन हैज पावर्स विच ट्रांसेंड हिज बॉडीली पावर्स. उसके सेंसेस ऐसे हैं जो 5 फिजिकल सेंसेस से भी ज्यादा हैं, इतना ज्यादा. So scientists today are finding positive, indisputable evidence that something conscious in man can leave his present body and travel thousands of miles to see, hear, touch and speak to people, even though his physical never leaves the couch on which he reclines. मैं यहाँ बैठी हूँ, लेकिन मेरा सोल ट्रैवल कर सकता है और वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करके ला सकता है. जैसे मुझे तो नहीं पता ना, जैसे अगर आपको ये कहना है कि अपने सबकॉन्शियस से आप बात कर रहे हो, दैट सबकॉन्शियस, कैन यू प्लीज गाइड मी एज टू व्हाट एक्शन आई नीड टू टेक टू डू दिस. यही तो आइंस्टीन करते थे, है ना. आइंस्टीन, न्यूटन, एसॉप, ब्लेक, इन सब ने ऐसे ही किया है. चार्ल्स डिकेंस और ये सब सबकॉन्शियस से बातें कर करके बने हैं व्हाटएवर दे आर इन देयर लाइफ राइट नाउ. I mean, like some of them are alive, some of them are not alive, but they have all relied on the invaluable power of the subconscious mind. तो वो वैसे ही पूछते थे, subconscious, can you tell me that what path I need to take because I really want this, can you take me to the place. हम भी तो ये करते हैं. जब मेरी भी इयररिंग्स खोई थी तो मैंने भी ये कहा था अपने सबकॉन्शियस माइंड को, can you take me to the place where my earring is, ठीक है, and it took me to the bathroom in the other bucket that I never use, जो सूखी पड़ी रहती है, that 2 buckets one over the other, ठीक है, और बकेट बात वैसे भी आई डोंट टेक. वहां पे समहाउ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने वो नीचे वाली बकेट निकाली और उसपे मेरा इयररिंग था, ठीक है, एंड इंस्टेंट आई डोंट थिंक इट टुक मी इवन 2 hours to be there. So this is how subconscious answers, because it can leave your body and can travel and see that place and come back. Okay, this is how it is, this is how it works. So इसीलिए कहते हैं कि ग्रेसफुली इतना ज्यादा, मतलब हमें पावर होती है, उस पावर को कभी भी जाने मत दो अपने से. ओन दैट पावर टू क्रिएट द काइंड ऑफ लाइफ यू वांट. सो दिस इज व्हाट इट इज. जो हमने पढ़ा है कि भगवान तो हमेशा अमर होते हैं ना, और ह्यूमन लाइफ इज गॉड. That is what it is, right? Your subconscious is what's guiding and ruling you right now. हम जो पैटर्न स्टैब्लिश कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं. तो मतलब इतनी पावर है सबकॉन्शियस माइंड में, इज इक्वल टू गॉड, राइट? इतनी पावर है. गॉड में ये तो पावर होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी कर सकता है. एंड सबकॉन्शियस माइंड तो हमारा रहेगा ही. हम मर भी जाएंगे जब आगे, तो सबकॉन्शियस तो रहेगा ना. सोल विल टेक अ रीबर्थ, वो दूसरे कपड़े पहन के आ जाएगा अगले जन्म में. सो इसलिए इट सेज दैट डोंट थिंक दैट लाइक, एंड सबकॉन्शियस लाइफ इज सेल्फ रिन्यूइंग. लाइफ कोई उम्र नहीं होती है, लाइफ अपने आप को इटर्नल होती है, रिन्यू करती रहती है, इनडिस्ट्रक्टेबल है, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न.
So that is what, that's how much we'll be able to do today. So thank you so much, Reena. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. So this is what, so very, very powerful studies in both the chapters. हालांकि वो बहुत छोटा था, magical footsteps, but करते रहो और patience रखो थोड़ा सा, ठीक है? जो कल हमने पढ़ा था ना, patience सबसे बड़ा attitude, youthfulness के characteristics है. Let me take you back to that this अगर आपने कल ध्यान से नहीं सुना था तो. क्वालिटीज जो आपको हमेशा यंग रखेंगी, पेशेंस, काइंडनेस, वेरासिटी, ह्यूमिलिटी मतलब डाउन टू अर्थ होना, गुडविल दूसरों का भला सोचना, पीस, हार्मनी एंड ब्रदरली लव. These are the attributes and qualities which never grow old. तो अगर हम ये वाली जो qualities अपने अंदर ले लेंगे तो we will never grow old. ठीक है? And this is what it is. क्योंकि ये सारे जो qualities है, अब कैसे ही काम करता है कि ये हमारे माइंड को बहुत पॉजिटिव जोन में रखता है. और अगर माइंड पॉजिटिव जोन में है तो हमारी कोई भी एनर्जी हमारी सेल्स के अंदर नेगेटिव नहीं होगी, बिकॉज हमेशा पॉजिटिव होगी, है ना? जब पेशेंस, काइंडनेस, वेरासिटी, ह्यूमिलिटी, गुडविल, पीस, हार्मनी, कहाँ है हमें ये सारी चीजें? पूरे टाइम तो हम ऐसे रहते हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, टू मच थिंकिंग, बेसिंग आवर हैप्पीनेस ऑन आउटसाइड वर्ल्ड, ये सब चलता रहता है हमारा, है ना? तो ये सारी चीजों को हमको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है. अपने आप हम मतलब एंटी एजिंग होती जाएगी, यानी कि बीमारियां. सो एजिंग जो वर्ड होता है ना, वो उम्र का बढ़ना नहीं होता है, ये हम साइंस में समझाते हैं. एजिंग डजंट मीन आपकी एज बढ़ रही है. एक क्रोनोलॉजिकल एज आपकी एक्चुअल एज होती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. आपकी जो एक्चुअल, सपोज आप 62 ईयर्स के हो, वो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं होती है. एक दूसरी होती है बायोलॉजिकल एज, ठीक है? तो उसको हम, जो सेलुलर एजिंग होती है, हम उसको एजिंग बोलते हैं. आई डोंट नो, कहीं से कुछ दाल का तड़का आ रहा है मेरे. तो जो एजिंग होती है, तो हम, अगर आपकी एक्चुअली 62 ईयर्स है, इससे हमको वैसे भी लेना देना नहीं होता, ठीक है? हम वो देखते भी नहीं. व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट, जो हम टेस्ट करते हैं, अपना BCA टेस्ट करते हैं, उसमें जो सेलुलर एजिंग, यानी कि ठीक है आप 62 ईयर्स के हो, लेकिन आपकी बॉडी अंदर से कितने साल की है, हमको वो मैटर करता है. तो हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं, है ना, और हमको ठीक करते हैं जो भी उनको बीमारी होती है, तो हमारा मेन मकसद रहता है कि हम उनकी सेलुलर एजिंग को कम करें. जैसे 62 ईयर्स के, बट सेलुलर एजिंग में आता है 85, तो मतलब बाहर से वो 62 ईयर्स के हैं, लेकिन बॉडी के अंदर से वो 85 ईयर्स के हो चुके हैं. उनके बॉडी के सेल्स, उनके ऑर्गन्स 85 ईयर्स के मतलब डिटीरियोरेटेड है, डिटीरियोरेट हो चुके हैं. तो हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम सेलुलर एजिंग को रिवर्स करें और उसको हम 35 ईयर्स का कर दें. मतलब बाहर से आप चाहे 62 ईयर्स के हो, हम आपकी बॉडी वैसे कर देते हैं कि आपकी बॉडी अंदर से मस्त 35 ईयर्स ओल्ड की है, ठीक है? यू माइट बी सो, व्हिच इज लिटरली 50% देन योर एक्चुअल एज. दैट्स व्हाट वी डू. Sorry, maybe somebody can share. I really need to cough. Like, anyone wants to share or add anything? There was a hand raised. यस मैम, एक तो भारती ने भी बोला था कि, हाँ भारती, प्लीज आप शेयर कीजिए. भारती ने बोला था कि व्हाट डू वी अफर्म, आजकल बहुत कंजक्टिवाइटिस चला हुआ है. सो डू आई आंसर्ड हर ऑन द चैट. पहले एक हैंड रेज था मैम, पर अब नहीं है हैंड रेज. पहले था एक हैंड रेज, अब नहीं है. भारती, आपका वो क्वेश्चन है अभी? हाँ जी. I just wanted, like, everyone is facing the same, including me, and especially school kids, those who are suffering and facing a lot of issues. And एक बच्चे को हो रहा है तो पूरी क्लास को हो रहा है, सब फेस कर रहे हैं. And especially those who are in election duties everywhere nowadays, especially in MP, and they can take a single day leave, means they have to go on workplace also, they have to meet people, and in that way they are spreading. So something, how we can stop it? How you can stop it? You have to build in your own immunity, so every day. So you really want to write, thank you universe for my perfect health. You want to write it 21 times, please go ahead and write. So your health will be perfect. Doesn't matter what's happening outside. So it's always easy, does it? We don't have to complicate a sentence or anything.
Thank you, universe, for my perfect health. Or I'm so happy and grateful that I'm enjoying a perfect health. Okay, that's all you need to write. That will take care of everything. Thank you. Although I was doing it like once, I'll do it 21 Now, times. you can do it 21, 100 times, or whichever way, 66, 99, 108. So whatever number you choose to do. And I also wrote that, thank you for my strong immune system. Yeah. So thank you for my immunity. So perfect health will take care. Immunity, perfect absolutely. health is an umbrella word. Okay, Yes. that will take care of everything else. Yeah. So immunity, you want to Thank write? you You so can much. write this also. Thank you for my perfect immunity. Yes. Thank you. Thank you so much. Anji, anyone else who wants to share or add anything? Or else we just get going. Good morning, Diti ma'am. Good morning. Sandhya, can we see your face? Just Sandhya this side, ma'am. Hi. Thank you very much. I have done lot from you और बहुत सारे dreams भी complete हुए हैं, no doubt. मुझे बहुत कुछ मिला है आपसे. एक छोटा सा क्वेश्चन है जो I think हम सब चाहते हैं, but वो होता नहीं है. I want to be in happy zone always. बट वो नहीं होता है. कुछ भी कोशिश कर लो, हम मतलब जितना हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अपने आप को पेशेंट भी रखते हैं, बट स्टिल कुछ ना कुछ ऐसा होता है, हैप्पी जोन में नहीं रह पाते. तो उसी का तो था आज वाला चैप्टर हमारा. हाँ, मतलब उतना क्या ये लिखने से उससे होगा, या मतलब मैं कई बार कन्वर्ट करती हूँ, कुछ भी पीछे आया उसको कैंसिल बोला, जैसे आपने सिखाया वो हो जाता है, वहां तक ट्रेन होगा. तो अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट ऐसे जोन हो रहे हैं आपका, बार बार जब आप अनहैप्पी हो रहे हो, 10 मिनट प्लीज मेडिटेट करो. ठीक है, आई एम नॉट इवन आस्किंग यू फॉर टू मच. आप 10 मिनट्स करके देखो, उसकी जो पावर्स होती है ना, उसकी पावर रियली ट्रांसेंडेंटल होती है. ऑल दीज ग्रेट पीपल जिनके बारे में हम सोचते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन लोगों को, दे ऑल मेडिटेट. यू डू दिस, यू विल सी मिरेकल हैपनिंग. दैट्स नंबर 1. 10 मिनट सीधे पीठ सीधी रख के बैठो. ठीक है, सुखासन में बैठो, आपको जैसे भी, या फिर ऐसे हाथ करके रख सकते हो, ऐसे करके बैठ सकते हो अपने लैप में. एंड यू विल सी दैट उसके बाद से, और अपने आप को 21 डेज दो. अगर आपने 21 डेज 10 मिनट मेडिटेट कर लिया ना, आप इसको मास्टर कर लोगे. ठीक है, इंटेंशन सेट कर लो. बिकॉज ये क्या है, अनहैप्पीनेस की होती है आउटर नॉइस के कारण. ठीक है, तो जब आउटर नॉइस, जब आप 10 मिनट भी मेडिटेट करते हो ना, तो आप वो शट डाउन मोड पे चला जाता है दुनिया. ठीक है, एंड आप इनर वॉइस को सुन पाते हो. आपको इंस्पिरेशंस आएंगे, हंचेस आएंगे, गाइडेंसेस आएंगे. और ये चीज हमको इकिगाई में भी बताई थी. ठीक है, पर हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते. सो स्टार्ट फ्रॉम टुडे, बिकॉज टुमारो नेवर कम्स. आज से 10 मिनट मेडिटेट करना शुरू कर लो. मेडिटेशन 3 तरह के होते हैं, कोई सा भी आप करो. आप ब्रीदिंग वाला मेडिटेशन करो, जिसको ब्रीदिंग मेडिटेशन बोलते हैं, जिसमें आप सिर्फ सांसों पे ध्यान दो. सीधे बैठो, पीठ सीधी करके, चिन अप करके. चिन अप करते हो तो अपने आप स्पाइन सीधी हो जाती है. ठीक है, बिकॉज आपके सारे ब्लॉकेजेस हटते हैं. अनहैप्पीनेस ब्लॉकेजेस के कारण होती है. सो ब्लॉकेजेस चक्रा में जो ब्लॉकेजेस होते हैं एनर्जी सेंटर्स में, है ना, तो फ्री फ्लो हो जाता है. तो या तो सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दो, इनहेलेशन, पेट से सांस लेनी होगी, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. ठीक है, बस ये करो. ये ब्रीदिंग मेडिटेशन होता है. दूसरा मेडिटेशन होता है ऑफ कोर्स गाइडेड मेडिटेशन. अगर आपको अभी दिक्कत आ रही है और आपको लग रहा है कि आपका दिमाग बहुत इधर उधर जा रहा है मेडिटेट करते वक्त, तो गाइडेड मेडिटेशन आप यूट्यूब पे जाओ, अपने एयरपॉड्स लगाओ और उसमें लगाओ 10 मिनट गाइडेड मेडिटेशन. ठीक है, खूब सारे आएंगे उसमें मेडिटेशन. आपको जो ठीक लगता है आप कर लो. 10 मिनट या 15 मिनट गाइडेड मेडिटेशन. तो उसमें आप 15 मिनट जैसे जैसे वो बताते जा रहे हैं, दैट इमेजिन दैट यू सीइंग द क्लाउड्स, सो सी विजुअलाइज द क्लाउड्स. फिर वो बोलेंगे एंड देयर इज अ बर्ड, अ बर्ड व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू. उसके बाद आप जा रहे हो, खूब सारे येलो कलर के सनफ्लावर्स हैं, यू आर लुकिंग एट देम. उसके बाद आप बिल्कुल लाइक अ चाइल्ड यू आर रनिंग थ्रू द सनफ्लावर्स. राइट, तो वो आपको इमेजिन करना है. तो गाइडेड मेडिटेशन थोड़ा इजी होता है, बिकॉज आप सुन रहे हो आवाज और वैसे वैसे आप विजुअलाइज करते जा रहे हो. ठीक है, और तीसरा होता है मंत्रा मेडिटेशन. मंत्रा मेडिटेशन होता है जिसमें व्हाइल आई रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, सो इट्स ओम. इफ यू आर अ हिंदू, आप ओम पे चैंट कर सकते हो, लाइक यू जस्ट सेइंग ओम एंड कॉन्स्टेंटली 10 मिनट के लिए आप ओम चैंटिंग करो. और ऑफ कोर्स आमीन अगर आप मुस्लिम हो, और एमेन अगर आप क्रिश्चियन हो. ठीक है, तो जिस भी तरह से करना है. ओम आमीन is the language of the universe. Amen. So they all mean the same basically. So they are the language of the universe.
सो आप अपने रिलीजन वाला जो है उस पे कर सकते हो। सो जो आपको ठीक लगता है आप करो, बट 10 से 15 मिनट मेडिटेट करके 21 दिन अगर आपने ये लगातार कर लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एंड आई कैन गिव यू इन राइटिंग ऑन अ स्टैम्प पेपर, बट एवरी डे मीन्स एवरी डे। ठीक है, Thank you, ma'am. Thanks a lot. फिर हैप्पीनेस आप देखना, यू विल बिकम अ फाउंटेन ऑफ हैप्पीनेस। Thank you. Thanks a lot. Okay. Thanks a lot. चलो, so I've got to go also, आज थोड़ा टाइम से ऑफिस पहुंचना है, so we'll all meet tomorrow. Anyone wants to share can please share tomorrow. ठीक है? Thank you, Thank Dipti. you, ma'am. Thank you For so your much, new ma'am. words. Every day I learn so many new words. Thank you, अभी हम लोग ma'am. का पढ़ाई तो क्या खत्म हो गया। सरिता आज जी? अम्ब्रेला वर्ड मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं बोल रही हूँ हम लोग का पढ़ाई तो परफेक्ट हेल्थ ना? हाँ, बस it's an umbrella yeah, word. that is a beautiful word I learn every day. कुछ नया। All right. Thank you. So sweet. Thank you so much. And thank you, Sarita ji. You're coming to Delhi. We would love to meet you, but then you're in a hurry today. So Yeah. Thank you, Tomorrow ma'am, for I'm all coming. your sessions. Thank Ninth, you, ma'am. Dipti 9th ma'am. I'm coming tomorrow. oh, tomorrow I'm you're coming. coming. Acha. 9th. Yeah. Thank you, Dipti ma'am, for all your blessings. Thank and, you. And Thank after you. 2 Oh, months, yes. I'm back. Deepa, where are you right now? I'm in Delhi only, but today I'm leaving Acha, for today you're Dublin. leaving. Okay, stay Yeah. connected with us. through the Yes, ma'am. YouTube में भी, of course, क्योंकि ma'am. आप ये तो यूके मेरी जा रहे हो तो जिंदगी है। यूके में तो मेरे ख्याल से 2:30 बज रहा होता है ना? लेकिन अब ये बहुत अच्छा हो गया ना कि मैं सुबह 6 बजे उठ के अपना वही सेशन लगा के उस दिन का और मैं देख सकती हाँ, हूँ। वैसे ही आप करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ हाँ, के ना। हाँ, हाँ, हाँ। और 2-3 दिन लगेगा थोड़ा सा स्लीप साइकिल, बट अफर्मेशंस करना दैट माय बॉडी इज अडैप्टिंग सो इजीली टू द न्यू, बिकॉज द वर्ल्ड, कहते हैं ना कि अपने होम को हमेशा यही बोलो दैट माय होम इज द वर्ल्ड इज माय होम. So, then Yes, you ma'am. will see that how easily your body will be able to adapt. And thank you so much. And I will miss you all for 2 months because I'll be back on 1st October. Very soon. Yeah, that's very soon. And लेकिन मैं wish you तो the आप best सबको of time in देखूंगी, UK and a very We will not smooth let you- delivery for your we will not let you daughter-in-law. miss our next. We'll also miss you, ma'am. Thank you so much, Priya. Thank you. Thank you. Bye bye, and wish you a very, very Bye-bye. pleasant and very fun, enjoyable journey, relaxed journey, Deepa. Yes, ma'am. Thank you. Your blessings are means just like diamonds in my life. Yeah. Energy भर के ले जाओ blessings आप. हाँ, खूब सारी एनर्जी भर के ले जाओ हम सबकी. Happy holidays. Thank Yeah, you. she's Thank going you, for a Sarita ji. daughter-in-law's Thank- delivery. Oh, that is a happy holiday only. Yeah. Yes. A new member is about to come, so Deepa's Come. family is just expanding with lot of Yes. happiness and a healthy, happy baby. Wish you. And should दीपा जी also का have a प्रमोशन healthy, भी होने happy वाला baby. है, दादी बनने वाली है। And हाँ, दादी and बनेगा। two means मेहमान आने वाले मेरे घर में। एक तो ये जो बहू आने delivery वाली हो- है एक और, हाँ. and बहू आने वाली है। हाँ, yeah. So beautiful. What a life. Yes, thank you so much. Thank you. Love you Bye bye. Love Thank you, you. madam. Zindagi. Bye bye. Love you. Bye.